Nisa, Beta, do you have any problem till here? You can ask. So please, all of you go on, open your books and go on page number 113, which is electrochemistry. And I am sharing the page with all of you as well. It's over here. Hope you all can see on your screens. Right. So this is a new chapter which we are going to study, inshallah, from onwards. Till now we have covered 6 chapters and we have only left with 3 chapters, including chapter number 7. Right, I think only 2 chapters. 9 chapter is in class 10. Yeah, it's chapter number 7 and chapter number 8 only over there. Electrochemistry and chemical reactivity. So you can also think about कि आपके पास कितना time है इस चीज को understand करने के लिए. You have lot of time to study again and again. Revision के लिए अच्छा खासा time है. Okay. So anybody has any idea about what is electrochemistry? Any idea? Any wild guess? Wild guess means तुक्का. Usman, Zohaib, no idea? Okay. बताएं. You can unmute, Usman. वो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसमें करंट डालेंगे हम. उसमें करंट डालेंगे. सबके जाऊं मैं आपकी उर्दू के अंग्रेजी के मिले जुले मिक्सचर के फारसी जो बोलते हैं आप. अच्छा जी, हाँ जी, somehow you are on the right path. के electrochemistry. Yes, Zuhaib, do you want to tell that what is electrochemistry? नहीं, कोई तुक्का भी नहीं लगाना आपने. Mehrun Nisa, no, I am not going to give you homework today because till chapter number 6 आप लोगों ने अगर complete नहीं किया, try to complete it by tonight and you have to submit your copies tomorrow. So I will not give you any homework, but I will give you homework regarding book. You have to learn something. I will listen. I will take a little bit test and then we will move on. Acha ji. So electrochemistry basically is the branch of chemistry which is going to be deal with the you can say relationship between chemistry while having some electrical current in it and some electricity and chemical reactions. इन दोनों का जो reaction होगा electricity को pass out करेंगे and what is the effect on chemical reactions that are going on. We are going to discuss it in electrochemistry. Now there are some major concepts you can see on your screens. That first one is oxidation and reduction, and then we are going to study that what is oxidation. We will study in 2 ways that what is the definition of oxidation and reduction. एक चीज अगर आप याद कर लेंगे, let's say if you have learned the definition of oxidation, तो आप इसका reverse लिख देंगे, तो that is going to be the reduction. ठीक है. Then we are going to study that what is oxidation state. जैसे हमने previously पढ़ा था कि ferric Fe+2 में भी होता है, Fe+3 में भी होता है. might be 10th class में मैंने बताया था Fe+3 और Fe+2 में होता है. What is the reason behind that? उसकी oxidation state +2 है +3 है, क्यों है differ करी. So we are going to study about that and then we are also going to study about the rules of assigning oxidation state. कि हम किस तरीके से उनके different rules क्या हैं, किस तरीके से उनको follow करते हैं. That we are going to give different oxidation states to different elements. Then we will also study about that what is oxidizing and reducing agents. के कौन से agents, let's say potassium dichromate है जैसे हम पढ़ रहे हैं, वो either it's reacting like an oxidizing or reducing agent, उसका reaction में क्या effect है. Then there are certain electrochemical cells जो के use होते हैं reaction mixtures में, बड़े level पे भी use होते हैं. So we are also going to study about that. And at the end we are also going to study that corrosion and its prevention. Corrosion क्या होता है? जंग लग जाना किसी भी चीज को. What are the causes behind that and how it is going to be prevented. जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है, रस्ट हो जाता है आयरन जिसको बोलते हैं हम. Let's say अगर कहीं पे आयरन पड़ा हुआ है, डम्बल्स कहीं पे पड़े हुए हैं ओपन प्लेस में, ओवर देयर रेन वाटर इज कमिंग एंड आफ्टर सम टाइम यू से सी वहां पे रस्टिंग हो जाती है आयरन की. So what is the cause behind that? किस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है, किस चीज की रिडक्शन हो रही है. We are going to discuss that as well. So moving on page number 114, you can also open that. Let me share with you. Page number 14 is over here. 114. Right.
So over here you can see there is an introduction. In introduction, what we are going to study, first of all, you can underline or highlight the definition of electrochemistry. That electrochemistry is the branch of chemistry that deals with the relationship between electricity and chemical reactions. Means if it comes in your exams, you must know that what is the proper definition. Means if you don't write down the relationship, your definition will be of no mark. It is basically the relationship between electricity and chemical reactions, right? Now जो मैंने आपको शुरू में बताया बेसिकली सारे का सारा इसमें है. जस्ट आई एम गोइंग गो थ्रू इट, रीडिंग कर रही हूँ so that you will be able to understand it. Now it involves oxidation and reduction reactions. There are two types of reactions which we are going to study in it. Number one is oxidation and number two is reduction. You can also mark it. Oxidation के ऊपर आप 1 लिख लें, reduction के ऊपर number 2 लिख लें. दो तरह के रिएक्शंस हैं, हम उनको स्टडी करेंगे. विच आर ऑल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. अब बहुत से रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रही है. ये आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज ज्यादा बेटर होती जाएगी क्लियर. ऐसा रिएक्शन जिसमें ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस एट अ टाइम हो रहे हो, मींस वन थिंग इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं दीज आर रिडॉक्स रिएक्शंस. यू कैन सी ऑन द थर्ड लाइन written over there that redox reactions, कि वहाँ पे जो reactions हैं that are known as redox reaction, in which oxidation and reduction reactions are going on. Now redox reactions either take place spontaneously. Spontaneously means, what is the meaning of spontaneously? Zohaib? नहीं पता नहीं. चलें उस्मान. Spontaneous mixing up of gases. वो तो डिफियन की बात थी बच्चे. स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या है? इसीलिए मैं रीडिंग कर रही हूँ. देयर आर सर्टेन वर्ड्स वी डोंट नो द मीनिंग. स्पॉन्टेनियस होता है इंस्टेंट, फॉरन रिएक्शन हो जाना. लेट्स से अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, आप स्प्राइट लेते हो या कोई सी भी कोक या एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू टेक, उसके अंदर आप काला नमक डालते हो, एक रिएक्शन होता है, बबल्स बनते हैं, फौरन से बनते हैं. ज़ुहैब बनते हैं, ज़ुहैब बनते हैं. ये क्या है? कभी ऐसे किया नहीं है? Whatever the bubbles are going to be formed, it is spontaneous reaction. कि आपने दो मिक्सचर्स को आपस में मिलाया और फौरन से जो रिएक्शन कैरी ऑन हो जाता है, that is spontaneous reaction. There is another example, like अगर आप बेकिंग सोडा लें जो हमारे घर में होता है मीठा सोडा, and you add vinegar in it, तो इसका जो रिएक्शन है that is very fast. बबलिंग होती है और ऊपर व्हाइट लेयर जो है सारी स्कैटर डाउन हो जाती है. So this is a spontaneous reaction कि आपने दो मिक्सचर्स को जस्ट मिक्स ही किया and they are going to start reacting. ठीक है? So this kind of reaction is spontaneous reaction. So redox reactions either take place spontaneously and produce electricity, or electricity is used to drive non-spontaneous reactions. यानी spontaneous reactions भी हो सकते हैं, non-spontaneous reactions भी हो सकते हैं, depending on कि हम उसमें क्या चीज को react करने जा रहे हैं. Spontaneous reactions are those which take place on their own without any external agent. Means खुद ब खुद reactions हो जाते हैं when you are going to mix two reactants. ठीक है? Non-spontaneous reactions are those which take place in the presence of an external agent. Like मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम अमोनिया को बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ कैटलिस्ट चाहिए. मैंने आपको जब सॉल्यूशंस का चैप्टर पढ़ा थी उसमें पैलेडियम की एग्जांपल थी. देन आई हैव टोल्ड यू इट इज एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट. बहुत से रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज होता है बिकॉज वी नीडेड कि वो रिएक्शन को फौरन से स्टार्ट करें. तो अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हैं, ये इसकी डेफिनेशन है, आर दोज व्हिच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट. आइदर इट कैन बी कैटलिस्ट और इट कैन बी मोर देन वन रिएक्टेंट. क्लियर? These reactions take place in galvanic or electrolytic cells. अब मैंने आपको बताया था कि हम electrolytic cells के बारे में भी पढ़ेंगे. उनमें से एक है galvanic और electrolytic cells. एक कंटेनर होता है जिसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हमने ज्वाइन किए होते हैं, कैथोड और एनोड, और बाय विच जो है इलेक्ट्रिसिटी सारी की सारी पास आउट हो रही होती है और कुछ सॉल्यूशंस ऐड अप किए होते हैं जिनके थ्रू केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं. So this one is carrying out in that one. Then electrolysis of fused sodium chloride produces sodium metal, and that of brine solution produces sodium hydroxide. Basically electrolytic cell के अंदर electrolysis हो रही है जिसमें chemical reactions और हमारे साथ उसमें एड अप हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है. अब जो उसमें जो सोल्यूशन हमने डाला है, what is that solution? It is of fused sodium chloride, and it is what it is going to be produced. It is going to be produced sodium metal, and that of brine solution
ब्राइन सोल्यूशन होता है सोडियम मेटल, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है। सोडियम क्लोराइड क्या प्रोड्यूस करेगी? सोडियम मेटल। और ब्राइन सोल्यूशन क्या प्रोड्यूस करेगा? इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? JS व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? sodium hydroxide sodium SO4 sodium H hydroxide HO इस तरह ही क्या कुछ होगा। इस तरह कुछ होगा की बात नहीं है। नहीं बहुत जे बुरी इब्राहिम बात की है। जब बाबा मुझे कॉल आई जा रही है इब्राहिम की, पता नहीं क्यों। टीचर यार चुप करो, मैं बताता हूँ टीचर, NaOH होता है। हाँ जी, सोडियम का सिंबल है Na। बहुत मर्तबा मैंने आपको बताया है द सिंबल। मैं बात ही सोडियम क्लोराइड से शुरू करती हूँ हमेशा, NaCl NaCl NaCl। 1000 बार मैंने बताया दिस इज वेरी रॉन्ग। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। सिंबल्स वैलेंसेस सारी चीजें पढ़ी हैं, एक पूरा टेबल दिया हुआ है। हाइड्रोक्साइड OH, हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, सोडियम Na। जब इसने OH के साथ रिएक्ट करना है इट इज गोइंग टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी बैड जुहेब, बुरी बात। बड़ा ही मुश्किल हो जाएगी आपको खुद से याद करने के लिए, बिलीव यू मी। इसलिए इन चीजों को साथ साथ करें ताकि एटलीस्ट ये मुफ्त के नंबर होते हैं, वंस यू रिकॉल इट तो आपको याद रहता है हमेशा के लिए। बहुत बुरी बात है, रियली डिसअपॉइंटिंग। चलें, द Corrosion process of iron along with its preventions are discussed in detail। ये सारे का सारा वो है which I just told you। Now coming towards the main topic which is oxidation and reduction reactions। Now you can also open your book page number 114। Osman, start reading। Oxidation and reduction reactions. One concept of oxidation and reduction is based upon either addition or removal of oxygen or addition or removal of hydrogen in a chemical reaction. So according to this concept, oxidation is defined as addition of oxygen or removal of hydrogen during a chemical reaction. Reduction is defined as addition of hydrogen or removal of oxygen during a chemical reaction. Both of these processes take place simultaneously in a reaction. We can say where there is oxidation, there is reduction. Okay, thank you। अच्छा जी, in this you have studied about two definitions, you can underline it which I have underlined। one concept of oxidation and reduction। अब मैंने आपको पहले बताया you are going to discuss two concepts of oxidation and reduction। means एक जो definition आप अच्छी तरीके से याद कर लें, याद करने का तरीका बता रही हूँ। let's say ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की अगर हम पहले बात करते हैं, इट इज आइदर एडिंग और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है वहां से हाइड्रोजन रिमूव भी हो, ठीक है। सो द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। व्हेन वी से वी आर गोइंग टू ऐड ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया जहां पे ऑक्सीजन ऐड होगी वहां पे हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने उसकी जगह लेनी है जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो वी कैन से where there is oxidation वहां पर addition of oxygen है। नंबर वन आप देख सकते हैं, मैंने आई थिंक A B करके, yes I have written with A and B। सो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिस रिएक्शन में आप देखेंगे कि हम ऑक्सीजन को ऐड अप कर रहे हैं और उसकी बाय प्रोडक्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी एज अ बाय प्रोडक्ट। सो वी विल कॉल दैट रिएक्शन इज गोइंग टू बी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो यू कैन डिफाइन इट एज addition of oxygen or removal of hydrogen during a chemical reaction, ठीक है। and now what is reduction? reduction is opposite। वहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो रही होगी। क्लियर है? आप एक चीज को याद कर लेंगे, इट विल बी इजी टू राइट डाउन कि दूसरा जो है वो दैट इज गोइंग टू बी द ऑपोजिट ऑफ दैट। रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन or removal of oxygen during a chemical reaction। Now both these processes are definitely taking place simultaneously। देखें, एक तरफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो दूसरी तरफ हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। लेकिन जो दूसरी इसके ऑपोजिट होगी जहां पे हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी एडेड एंड ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी रिमूव्ड इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। ज़ुहैब समझ आया? मुझे बताएं। JS समझ आ गया। क्या समझ आया मेरा बेटा, मुझे जरा जानने बताएंगे। का ऑक्सीडेशन वो है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, और रिडक्शन वो है इसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ये मैंने एक्सप्लेन किस तरीके से किया। हाँ, मतलब मैंने क्या बताया रिएक्शन में कैसे होगा, ये तो जुबानी कलामी बात होगी। हाइड्रोजन कहाँ, मैंने बताया रिएक्शन में किस जगह पे हाइड्रोजन रिमूव होगी कैसे, अभी मैंने बताया।
जो मैंने सुना मैंने वही बताया। मैंने नहीं सुना, मैं इब्राहिम शफीक की कॉल की तरफ देखे जा रहा हूँ, तो मुझे कॉल क्यों किया जा रहा है? नहीं अब नहीं आ रही। देखें हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल नीचे देखें, एक रिएक्शन लिखा हुआ है ऑन योर बुक एज वेल, वहां पे है जिंक ऑक्साइड, Zn इज फॉर जिंक ऑक्साइड O। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें क्लियर होंगी, माइट भी 9th क्लास में जाकर क्लियर ना हो, 10th क्लास में आपको समझ आए। जिंक ऑक्साइड, लेकिन आपके लिए फॉर्मूला को रट्टा मारना समझने बहुत जरूरी है। जिंक ऑक्साइड ZnO, इसका जब हम कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो आप देखो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है, प्रोडक्ट्स में क्या आ रहा है, जिंक खाली Zn, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई जिंक ऑक्साइड से पीछे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गई है, तो इसका मतलब है व्हाट इज द रिएक्शन, क्या होगा जो है रिएक्शन, रिडक्शन। रिडक्शन हो गई, शाबाश। और अगर हम कहें कि ये देखें कार्बन है, वो जो ऑक्सीजन निकली है वो कार्बन के साथ जाके लग जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिएक्शन है व्हाट इज इट कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी एडेड विद कार्बन। समझ आई बात? Look at the reaction again. I am explaining it to you again that we have zinc oxide when it is going to react with carbon. ठीक है, कार्बन के साथ जब हम इसका रिएक्शन करने लगे हैं, तो आपने देखा है प्रोडक्ट्स में हमारे पास खाली जिंक रह जाता है, इट मींस जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन कट डाउन हो गई, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। सो वी विल, ऊपर एरो लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और लिखा हुआ है ये रिडक्शन हो रही है, इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। और जो कार्बन है, कार्बन ने उस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगी, इट मींस इट इज गोइंग टू बी एड ओवर देयर, तो कार्बन रिएक्ट किया है। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना जो है वो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर है जो है, क्लियर है बेटे? यस क्लियर है। उस्मान मतलब about you beta, is it clear? You can ask me right now so that we can move on. मेहरुनिसा बेटे आप बताएं, क्लियर है यहाँ तक? Yes. चलें शाबाश। रबिया, रबिया हसन बेटे यू कैन अनम्यूट योर माइक। Miss clear है। क्लियर है? चलें ठीक है। देखो यहाँ से अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना, इट विल बी वेरी इजी, बजाय रट्टा मारने के आपको खुद से पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2 इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो जहां पे भी ये दोनों प्रोसेसेस कैरी ऑन हो रहे होंगे, लाइक जो रिएक्शन आप देख सकते हैं नीचे आपको दिया हुआ है 2 जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट व्हाट हैपेंस, 2 हमें जिंक के मोल्स मिलेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गोइंग टू बी फॉर्म। तो ये रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। सो दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन से डी, RED from reduction, OX, ox means oxidation. Redox word is derived from reduction and oxidation. RED, red means reduction, ox means oxidation. वो reactions जिसमें दोनों के दोनों reactions हो रहे हैं, that is known as redox reaction. Clear? आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वर्ड डिराइव किधर से किया गया है। और जब मैं पूछूंगी आई एम गोइंग टू अगेन आस्क अगेन एंड अगेन कि आप क्लास में सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, बिकॉज एक चीज अगर मैं आपको बता रही हूँ तो यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड। जब अगर आगे आपने केमिस्ट्री को कंटिन्यू रखना होगा, इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू एज वेल। अच्छा जी, now coming towards let us last line for you, let us have another example based upon removal or addition of hydrogen. अब हम यहाँ पे किसकी बात करने लगे हैं? दोनों की, रिमूवल भी हो रही है हाइड्रोजन की और एडिशन भी हो रही है, ठीक है। जो है व्हाई आर यू स्लीपी टुडे? नींद नहीं पूरी हुई? नींद पूरी है। नहीं, आज आप फ्रेश नहीं है बिल्कुल भी क्लास में, या दिल नहीं करा पढ़ने को? दिल नहीं करा। पढ़ लो, देखो मैं आसान सा पढ़ा रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं पढ़ा रही। अच्छा जी, so a reaction between hydrogen sulfide, you can move on page number 115 of your books. I can share it with you, but it's better you move on by yourself on page number 115. Right. So here in your teens that we're going to study another reaction. See, hydride is H and reduction of chlorine. हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। क्लोरीन के साथ जब हम उसका रिएक्शन कर रहे हैं, now you have to see what's going on there. रिएक्शन आप देखें, H has
हाइड्रोजन सल्फाइड व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद क्लोरीन, अब आप देखें आगे रिएक्शन में क्या बन रहा है, अकेली सल्फर है, मींस हाइड्रोजन उधर से रिमूव हो गई है हाइड्रोजन सल्फाइड से। फातिमा बेटा आपने जो शॉर्ट आंसर्स है ना यूनिट नंबर 6 के सॉल्यूशंस के, यू आर सपोज टू राइट डाउन दैट, तो 12 के 12 आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर्स नहीं आपने करने बिकॉज वो ऑलरेडी आप कर चुके हो। हर क्लास के एंड में मैंने आपको होमवर्क असाइन किया था एंड ऑलमोस्ट सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस वही वाले हैं जो कि आप सिर्फ क्वेश्चंस के साथ हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स मैंने आपको 2 करवाए हैं, वो आपने साथ करने हैं। टिल हियर आपका काम सबमिट होना चाहिए कल तक, ठीक है। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी राइट नाउ बिकॉज क्लास इज गोइंग टू बी राइट आफ्टर 7 to 8 minutes। अच्छा जी, हम इस रिएक्शन की बात कर रही हैं जिसमें यू कैन सी देयर इज हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद क्लोरीन। अब आप देख सकते हैं कि जब उसकी प्रोडक्ट्स बननी है इट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड ओनली सल्फर एंड HCl। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब सल्फर है अकेली रह गई, उसमें से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गई है, निकल गई है, रिड्यूस हो गई है। तो इट मींस व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज, जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वो चलो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन है, ठीक है। आप देखें हाइड्रोजन सल्फाइड्स का सल्फर में चेंज हो जाने का प्रोसेस जो है वो ऑक्सीडेशन है। इसको आप एक दफा गो थ्रू खुद भी करेंगे बैठ के। इतना सा पेज है जो आज हमने पढ़ा है, सिर्फ छोटा सा। इसको अगर आप जहन में अच्छी तरह बिठा लेंगे ना तो आपके लिए ये आगे चैप्टर गो थ्रू करना बहुत इजी हो जाएगा, वरना आप कहेंगे बहुत मुश्किल चैप्टर है। इट्स जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट कि कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है, किसने आयन पकड़े हैं, क्या बनाया है। अगर समझ आ जाएगा इट्स रियली वेरी इजी, नहीं आएगा तो लगे भी रहोगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जहां पे समझ नहीं आ रही जस्ट रेज योर हैंड, मुझे वहीं पे स्टॉप करें, आई विल हेल्प यू। डोंट से एट द एंड ऑफ द डे के टीचर हमें समझ नहीं आया था, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन द स्कूल एज वेल। 2 थप्पड़ लगाऊंगी जिसने मुझसे दोबारा पूछा स्कूल में। ओके ना, क्लोरीन देख रहे हैं आप, क्लोरीन में जाके एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की, एरो से रिप्रेजेंट भी आपको किया हुआ है। सो इट इज गोइंग टू बी रिडक्शन। क्या होगी यहाँ पे? रिडक्शन हो जाएगी बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज गोइंग ओवर देयर। सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस आर involved is called oxidation reduction reaction or redox reaction. It is an important MCQ, आप देख सकते हो इसको अंडरलाइन किया हुआ है और बहुत मर्तबा आता है कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस हो रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन दैट? क्या हो गया उस्मान? ठीक है, so these process is known as redox reaction. Next time we are going to study oxidation and reduction in terms of loss or gain of electrons. कि हमने अभी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ये पढ़ी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट टाइम जो हम ऑक्सीडेशन की एक और नई डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ बनता है, कैटाइंस और एनाइंस का कांसेप्ट आ जाएगा उधर, ठीक है। अब यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। मेरा क्वेश्चन है लेकिन इसके रिलेटेड नहीं है। इससे रिलेटेड है? वो टीचर मैंने पूछना था कि हमें छुट्टियां कब से हो रही हैं? माशाल्लाह, कौन सी छुट्टियां? टीचर वो हमने वो छुरी छुरी फेरनी है गले पे बकरों के, और हाल शाल वगैरह भी उतारनी होती है, और खाना शाना खाना होता है हमने अपना। I दोपहर also में don't know. बिरयानी, नाश्ते में चापे, दोपहर में बिरयानी, रात को पाए, बल्कि उल्टा कह दिया मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो जाएगा उस्मान। जुहेब कैमरा ऑन करो, कहाँ भाग गए हो बेटे? I really don't know about the vacations. As the government will announce, you will get to know as well. ठीक है, और अपना काम प्लीज कंप्लीट करके भेजिएगा। हाँ, अब होमवर्क सुन ले सारे। व्हाट इज योर होमवर्क फॉर थर्सडे? थर्सडे को आपने जनाब ये करना है, फर्स्ट आई विल लिसन अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देन what you are going to do, you have to open solutions unit, और उसमें जितनी भी डेफिनेशन है ना, लाइक मोलैरिटी, colloids, suspension, solution, saturated solution, unsaturated solution, super saturated solutions, just definition, वो सारी की सारी याद करनी है और मैंने सारा सुनना है, मैंने सारा टाइम उसी पे लगाना है, ठीक है। ठीक है जनाब, बोल तो पढ़ो। ये फ्राइडे को सुनाना है? थर्सडे को थर्सडे को थर्सडे को? हम लोग फंस गए हाँ जी। थर्सडे को। क्या होगा? थर्सडे बड़ा मुश्किल दिन है।
हाँ जी उस्मान आपको ही शौक था, हमें स्ट्रेस रखते देखे सारे प्रेजेंट जब होते एक बार यार आप इधर से किसी को अनम्यूट रहे बार बार माइक अनम्यूट करना पड़ता है उससे नहीं वो पीछे से ना वो ये आवाज आ रही होती। बूम नहीं नहीं दैट इज अनम्यूट, कोई वो इशू नहीं है। चलिए जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ गर्ल्स। नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन, ओके द मीटिंग इज गोइंग टू बी एंड आई थिंक आफ्टर few minutes. ओश What happened? Mehrunisa bete, any question? Zuhaib, what is the formula of sodium hydroxide? सोडियम हाइड्रोक्साइड Yes. 2 मिनट अफसोस है सोडियम का क्या था COCH पता नहीं क्या नहीं सोडियम का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा हाइड्रोक्साइड का याद है प्यार से बोलते हैं, सोडियम में करके नहीं बोलते, सोडियम हाइड्रोक्साइड बुरा लग जाता है। सोडियम का क्या फॉर्मूला है सोडियम का Na फॉर्मूला नहीं होता, सिंबल होता है। ओके जब भी जो भी NaOH it's NaOH. And what is sodium chloride? सोडियम क्लोराइड NaCl What is hydrochloric acid? Formula of hydrochloric क्या? acid. Hydrochloric acid. अच्छा आपकी आवाज इतनी रड़की आ रही है और उस्मान तो नीचे छुपी जा रहा है टेबल के Hydrochloric acid. ओके HCl आवाज आ H नहीं होता, H होता है। रही है HCl हाँ जी, आराम से प्यार से, बेचारे फॉर्मूलाज भी बुरा मना जाते हैं कि कितनी हमारी बेइज्जती करें। मैं जो आपको जो है बिल्कुल टिपिकल पेंडुओं वाले अंदाज में कहना शुरू कर दूं, हाउ डू यू फील? बुरा नहीं लगेगा नहीं बुरा लगेगा, चलो माशाल्लाह। यस उस्मान, व्हाई यू रेज द हैंड? हमें बुरा नहीं लगता, वो यार द गुड बॉयज हमारे साथ वैसे ही ऐसे बात हो जाती है। माशाल्लाह। चलें, अच्छा जी उस्मान आप मुझे बताएं, वंस व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ एसीटोन? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसीटोन? Zohaib, now you smile on Usman. Usman, you pretend that teacher मेरा कैमरा रुक गया है. You just still like this. कि टीचर को शक होगा that I am still, मेरे कैमरे को कोई इशू हो गया, मेरे नेट को कोई इशू हो गया, like that. आंखें लेकिन आप ऐसे ब्लिंक कर रहे हैं. चलो मुझे ये बताओ, सोडियम जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बारे में मैंने एक क्वेश्चन बताई थी, एक प्रिकॉशन बताई थी. व्हाट वाज दैट? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में अगर मैं आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दूं और मैं कहूं कि उस्मान इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द प्रिकॉशन टू टच दैट? जहर है। हैं? जहर है। जी नहीं, जहर का फॉर्मूला भी बताया बहुत दफा. डिसइंफेक्टेंट है।